नमस्कार। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का अंतिम पड़ाव। मैं हूं जया सिन्हा और लाइट्स कैमरा इफी के इस आखिरी एपिसोड के साथ हाजिर हूं पणजी, गोवा से। एक भव्य समारोह के साथ 9 दिन तक चले सिनेमा के इस उत्कृष्ट उत्सव का हुआ समापन। सीमाओं को लांघते, संस्कृतियों को जोड़ते इस सिनेमा की एकीकृत शक्ति का प्रदर्शन हमें दिखा इफी 2024 के मंच पर। सितारों से सजे समारोह के साथ हुआ 55वें इफी का समापन, जहां कहानी कहने की कला और वैश्विक सिनेमा की भावना का जश्न मनाया गया। 75 देशों की 200 से अधिक फिल्में, उद्योग के दिग्गजों द्वारा मास्टर क्लास और प्रेरक पैनल चर्चाओं के साथ इस वर्ष इफी ने सिनेमा के बढ़ते प्रभाव को पहचाना। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव संजय जाजू समेत कई गणमान्य अतिथियों ने इफी 2024 के समापन समारोह में शिरकत की। This time it's a festival of the industry, for the industry, but this time with Shekhar Kapoor ji here, we made it by the industry possible. Yeah. So this festival truly exemplifies the best in the industry, and believe me, all these are the moments which we want to cherish. These are the moments we want to live. And it's great that we have been able to do it. We have the future here. Yeah. Future is now, sitting right here. And I think this is what makes this festival big. The biggest thing is the film bazaar. All of you would agree that this has been the biggest film bazaar. And thanks to Government of Goa for being such a great supporter of entertainment. Truly, Goa is the entertainment capital of our country. Thanks to the Honorable Chief Minister. ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज फिल्म निर्माता फिलिप नॉयस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। गोल्डन पीकॉक, सिल्वर पीकॉक के साथ प्रतिष्ठित पुरस्कारों की प्रस्तुति के साथ फिल्म निर्माण में असाधारण उपलब्धियों का जश्न मनाया गया। चेक ड्रामा ड्राई सीजन इफी 2024 की समापन फिल्म रही। इफी 2024 ने सीमाओं को पार करते, संस्कृतियों को जोड़ते सिनेमा को प्रस्तुत किया। जया सिन्हा, डीडी न्यूज, पणजी, गोवा। भारत के 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष फिल्मकार फिलिप नॉयस को। फिलिप नॉयस से की हमने खास मुलाकात और जाना कि कैसे आज भी सत्यजीत रे युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, कैसे आज सिनेमा की ताकत भारत को पूरे विश्व से जोड़ रही है। Satyajit Ray taught us to look for the heart, to make stories from the heart, to be small in scope but big in heart. And you know, he taught us so many other things as well. You know, and in a funny way, he himself had been taught by Vittorio De Sica, the famous Italian filmmaker who made a film in the early 50s, just before Peter Panchali came out, or before Ray started filming it, and that was called Bicycle Thieves, which was a simple story of a kid growing up in post-war Italy, with real people playing the parts, not trained actors. And then Ray took that inspiration and turned it into the Apu trilogy. And then we in Australia saw Ray's films and said, okay, this is how we can make films. This is how we can make the smaller budget films. So, you know, we dreamed of making feature films. And the feature films that we wanted to make were so inspired by Ray's work. Well, you know, it's embarrassing in a way, because compared to what he did, I think that I'm a pretender.
This was a man whose films I greatly admired, who inspired me, who inspired my generation of film directors in Australia, who showed us a way of telling stories, an approach to characters, you know, and I've learned so much and used so many of his techniques, you know. I mean, I can still remember first seeing Pather Panchali and looking at the old woman, the wizened face, you know, that was like such a breakthrough for me in terms of thinking, well, there's no actor that could ever look like that. There's no one who could emote like that. So, you know, receiving this award named after that great filmmaker, it's humbling. We're always, in filmmaking, we're always looking for co-production partners. That is another culture, another country that maybe could foot part of the price of making a movie. And that means we've got to search in the relationship between India and Australia for themes, for stories that might appeal to both countries, but also break out of both countries and sell to the world. I think that it's possible that the Indian side will benefit more greatly because there's so much migration. So many Indians have gone to live in Australia, and I can immediately think of, you know, a story to present to finance of, you know, an Indian family migrating to Australia and all the difficulties they might have in adapting to a completely different way of life and perhaps finding harmony through cricket. इसी 2024 में कई नई पहले देखने को मिली। इन्हीं में से एक थी FTI पुणे और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के पहले और दूसरे बैच के छात्रों का एक साथ आना। इतने वर्षों के बाद ये एल्युमनाई मीट हुई। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने योगदान से फिल्मी दुनिया को, फिल्म इंडस्ट्री को आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। यकीनन एक बेहद भावुक कर देने वाला ये पल था। इस मौके पर कई गणमान्य अतिथियों ने शिरकत की, जैसे पश्चिम बंगाल के गवर्नर, साथ ही सुभाष घई और R माधवन। But I hope you have been listening. Yes. I have done it. You didn't. But why? I don't know. I've done it. Just to join the institute. Forget about passing out and becoming relevant and successful. Just to join it. The amount of resistance you must have faced from your family, the way that you must have been looked at by society. And despite all that, to have created such a tradition and a relevant institute today, hats off to all of you. We at the industry today, like Sir very eloquently mentioned, are also at a turning point. Things are changing vastly, quickly and at a great pace. और हमें रेलेवेंट होना बहुत ज़रूरी है और हमें बहुत सारी तब्दीलियाँ करना बहुत ज़रूरी है और हम उम्मीद करते हैं कि a meet like this every year, and thank you to the ministry for having done this at the last minute. I was skeptical honestly when you first suggested, and so my dad was very skeptical, but congratulations on I can see the importance of such a meet and such a felicitation, because we're going to dig deep and dive into your experiences, and I hope that you are able to partake of our knowledge of technology and the latest methods, and we are able to benefit by your vast wisdom and experience.
75th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उनको यहाँ बुलाकर उनको सम्मानित करना, क्योंकि किसी भी संस्था क्योंकि ये स्किल है, ये स्किल ओरिएंटेड, प्रैक्टिस ओरिएंटेड आर्ट है, कला है, और ये सारे दिग्गज जब आते हैं और वो अगर संस्था के साथ जुड़ते हैं तो संस्था अपने आप बड़ी होती है। और मैं रोमांचित हो गया ये देखकर कि हम तो उनके कंधों पे खड़े हैं आज। बहुत अच्छा लगा है, स्पेशली बाकियों को मैं देख रही हूँ बिकॉज़ उस समय हम लोग बिल्कुल स्कूल से निकले हुए थे, उसमें सारे बड़े बड़े थे सब लोग, तो वो सारे ऐसे हो गए कि मैं उनको पहचान नहीं पा रही हूँ। तो वो सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। इन्होंने बहुत अच्छा एफर्ट किया है सबको इकट्ठा करने का और उन लोगों को बूस्टअप करने का जो कि इस एज में है, शायद अपने जीवन की संध्या में है। यादें ताज़ा हुई। हम सोच रहे थे कि 25 साल बीत गए, मेरे लिए 25-28 साल बीत गए, लेकिन एक्चुअली टाइम वहीं पे खड़ा हुआ है, बचपन याद आ गया। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो कि ऑफिशियल्स भी इमोशनल है इस इवेंट को लेके, विच इज़ आई थिंक अ न्यू बिगिनिंग। भारतीय सिनेमा का जो मौजूदा मुकाम हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं श्रेय उन लोगों को जाता है जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया इसके लिए। एफटीआई और सत्यजीत रे इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड स्टडीज़ के एक बहुत ही खास कार्यक्रम यहाँ पर इफ़ी में रहा, जहाँ पर माधवन मौजूद है। माधवन, आप हाल ही में कुछ समय पहले ही आप एफटीआई से जुड़े हैं, किस तरह से लगता है कि आज एफटीआई को कोशिश की जा रही है कि तमाम इंस्टीट्यूट्स को एक ही मंच पर लाकर एक कोशिश की जाए भारतीय सिनेमा को उस मुकाम पर पहुँचाने की, और एक काइंड ऑफ सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक लर्निंग टूल के हिसाब से किस तरह से हम ले सकते हैं, उसकी भी एक छोटी सी झलक हम देख रहे हैं। लर्निंग टूल ही नहीं बल्कि ये समाज को बदलने वाली, तब्दीलियाँ लाने वाली, लोगों को जागरूक करने वाली मीडियम भी है। हम जो आज जिस फंक्शन की आप बात कर रहे हैं उसमें SRFTI के अलुमनाई, यानी कि उसके जो फर्स्ट बैच के लोग हैं, फर्स्ट 5 इयर्स के बैच, और FTI के जो पहली बैच के लोग हैं, उन सबको आज सम्मानित किया गया, उनको इकट्ठा किया गया एक ही जगह पे। और अगर आप पूछेंगे कि इसकी वजह क्या है, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये लोग हमें बहुत ही गंभीर और बहुत ही अच्छे रूप से प्रोत्साहित करते, वो इसलिए क्योंकि जिस वक्त इन्होंने ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया होगा उस वक्त इतनी सारे मुश्किलें इनको झेलनी पड़ी होंगी, क्योंकि समाज में फिल्म मेकिंग को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। इनके घर वाले सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्या धंधा में आप घुस रहे हो, शादी होना मुश्किल हो गया था। मैंने कई लोगों से आज बात की, वो कह रहे थे कि शादी टूट गई भाई, क्योंकि हमने फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, क्योंकि उनको लगा कि हम अजीब व गरीब प्रोफेशन में घुस रहे हैं। उस वक्त से लेकर आज तक अगर ये अपना नाम बनाए रखे हैं और अगर ये आज भी रेलेवेंट है और आज भी नॉट ओनली सोसाइटी को, पर अगर फिल्म इंस्टीट्यूट को भी वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इनमें ऐसी क्षमता है जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ हो रहा है हमारी इंडस्ट्री में, आज भी बहुत सारी तब्दीलियां हैं, हमें अपने आप को बदलना पड़ रहा है, हमारे कंडीशनिंग से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा विजडम भी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे संगठन में जब लोग आएंगे, ऐसे साथ मिलेंगे, तो उनसे हम सलाह लेकर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, मीडिया इंडस्ट्री को ऐसे मुकाम पर ले जाएंगे कि पूरी दुनिया उठकर हमें देखें। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आप शिरकत कर रहे हैं, आपकी फिल्म हिसाब बराबर का प्रीमियर यहाँ पे हुआ, किस तरह से देखते हैं, अनुभव जो आपका यहाँ रहा? खास ही साथ ही इस फिल्म के बारे में भी जानना चाहेंगे, बहुत ही सशक्त किरदार में नजर आएंगे, वित्तीय गड़बड़ियों का एक आम आदमी का जो पावर है, नेवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन, उसकी एक झलक देखने को मिल रही है। आपने रहना तेरे दिल में की बात भी करी, उसके 25 साल पूरे हुए, किस तरह से देखते हैं जब फिल्मों का सफ़र, साथ ही इफ़ी में आपका जो अनुभव? तो मैं इफ़ी का जो है जवाब देना चाहूँगा कि इफ़ी मेरे ख्याल से इतना मशहूर हो गया, अब दुनिया भर के लोग यहाँ आना चाहते हैं। मेरे कई सारे दोस्त दुनिया भर में ये मुझसे हक से मांग रहे थे कि भाई हमें पास दिलवाओ, हमें ये सेशन ज्वाइन करना है, मुझे वो सेशन ज्वाइन करना है।
तो ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बहुत ही सेलिब्रेटेड और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिल्म फेस्टिवल इफ़ी बन रहा है, और दुनिया भर के फिल्म मेकर्स यहाँ पे अपने आप को लाना चाहते हैं, उनकी फ़िल्म को रिलीज़ करना चाहते हैं, और इस बात से मुझे बहुत खुशी है। मुझे लगता है कि इंडिया में जिस तरह के कंटेंट बनते हैं, जिस तरह की हमारी यहाँ कहानियाँ हैं, और जिस तरह के सबक दुनिया को इंडिया से सीखना चाहिए, वो सबका एक मूल जो है कारण है, ये ऐसे फिल्म फेस्टिवल्स हो सकते हैं जहाँ हमारी फिल्में आए और फिर हम इन्हें यहाँ से दुनिया भर के फेस्टिवल्स में भेजें। आजकल री रिलीज़ का ज़माना है, फिल्में री रिलीज़ की जा रही हैं और काफ़ी पसंद की जा रही हैं। कोई ऐसी फिल्म आपकी जो आप चाहते हैं कि दोबारा दर्शकों के बीच आए? ये बड़ा मतलब ये वो तो है कि रिलीज तो हो ही जाएगा, फिर पता चला कि दर्शक उतना इम्प्रेस नहीं हुए तो गड़बड़ भी हो जाएगी। हमने हाल ही में फिल्म रिलीज़ की थी रहना है तेरे दिल में, उसको बहुत सारा शाय मिला, बहुत सारा प्यार मिला, पर मैं तो चाहूँगा कि मेरी नई फिल्में रिलीज़ हों। वैसे ही लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि मैं बहुत कम फिल्में करता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि इस साल वो शिकायत नहीं होगी। रहना है तेरे दिल में री रिलीज़ हो रही है और एक तरफ आपकी शैतान आ रही है, जो एक डिफरेंस, इतना डिफरेंट शेड्स ऑफ कैरेक्टर्स के साथ आप आ रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है आपको इस समय काम करने में? आज भी शैतान को ढूंढ रही थी, नज़र नहीं आ रहा, ये लॉस हो मुझे। मैं आपको पेड़ा खिलाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। आई नीड टू नो। नहीं, देखिए, एक कलाकार के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि लोग अभी भी और कितने इंथुसियाज़म के साथ उनके काम को लोग जिसका इंतज़ार करते हैं, उस मामले में मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तक मैंने आधा ही काम किया है और बहुत कुछ बाकी है। सुभाष जी की बातें मैं सुन रहा था, जो वो कह रहे थे, आज भी उनको लगता है कि वो सीख रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी। आई होप दैट आई गेट टू डू मोर वेरिड रोल्स। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू। बहुत ही शानदार किरदारों के साथ यहाँ पर आर माधवन दर्शकों के बीच आ रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि अभी उम्मीद है कि वो और भी काम करना चाहते हैं और भी सीखना चाहते हैं। कैमरा पर्सन आलोक के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज़, पणजी, गोवा। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इतिहास के साथ साथ आज के लेटेस्ट कंटेंट को प्रस्तुत करता है OTT प्लेटफॉर्म वेव्स। OTT दर्शकों के लिए, साथ ही डिजिटल मीडिया के लिए संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम प्रदान करता है वेव्स। कुछ प्रमुख कंटेंट को छोड़कर वेव्स को डाउनलोड करने और इसके बाकी कंटेंट को देखने का कोई भी शुल्क नहीं है। इफ़ी 2024 के मंच पर OTT प्लेटफॉर्म वेव्स के शुभारंभ के साथ ही इसने मार्केट में मचा दी है हलचल। भारत की प्रतिष्ठित लोक प्रसारक दूरदर्शन ने डिजिटल स्ट्रीमिंग सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए लॉन्च किया OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, जो आज दर्शकों का पसंदीदा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने गोवा में आयोजित 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में वेव्स OTT प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया था। लॉन्च के साथ ही वेव्स दर्शकों का ध्यान खींचने में सफल हुआ। इफ़ी के मंच पर पहुंचे सिने उद्योग के सितारों ने वेव्स की सराहना की। ऐसा तो मैंने कहा ना कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है। अभी जो सिनेमा हॉल में नहीं जा सकते, एटलीस्ट वो देख तो सकते हैं। अगर कोई बीमार है, फॉर इंस्टेंस, इफ़ आई वांट टू सी अ फिल्म आफ्टर 5 years, आई वोंट बी एबल टू गो टू अ थिएटर। It's better to see it on the screen in house. So that is an advantage. दूरदर्शन तो हमारे खून में था, अब वेव हमारी सांसों में होगा, मतलब अच्छी बात है। इनसे सारी चीज़ें बहुत जगह सिनेमा पहुंचती हैं। वेव्स जो प्रसार भारती ने अपना वेब चैनल जो है वो उसका उद्घाटन, मुझे लगता है इफ़ी के ही उद्घाटन के दिन ही उसका उद्घाटन हुआ है। और बहुत OTT प्लेटफॉर्म और OTT प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी, एक नेशनल प्लेटफॉर्म की बहुत आवश्यकता थी कि नया टैलेंट, नई ऊर्जा जो है क्रिएटिविटी के क्षेत्र में, फिल्म हो या सीरीज़ हो, तो उनको भी एक प्लेटफॉर्म, एक नेशनल प्लेटफॉर्म देने की जो बात की है प्रसार भारती ने, तो उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म राष्ट्र जब सोचता है तो बहुत बड़ी बात होती है। आई एम वेरी प्राउड टू से कि आप बिहार की छवि फिल्मों द्वारा वेव्स पर देख पाएंगे, क्योंकि वेव्स OTT जो प्रसार भारती का नया OTT है लॉन्च हुआ है बाय द CM ऑफ गोवा, इफ़ी में
आपको बहुत गर्व होगा जानकर कि अच्छी फिल्में आ रही हैं वेव्स पे। हमारी दोनों फिल्में वेव्स पर हैं, देखिए। There's a lot of nostalgia with Doordarshan. It went to every home, and I was the most excited and fascinated when Doordarshan, जिसकी सबसे ज़्यादा reach है, was coming up with OTT and was opening different formats of content, you know, which to me was very, very fascinating. वेव्स क्लासिक कंटेंट और समकालीन प्रोग्रामिंग का समृद्ध मिश्रण पेश कर आधुनिक डिजिटल रुझानों को अपनाते हुए पुरानी यादों को फिर से ताज़ा कर रहा है। Yes, well, I think it's really great that India has launched its own OTT platform with Indian films. There is an enormous diaspora, and they will be the first people to start consuming it. But I think over time, it will get bigger. And as people watch RRR and see them win an Oscar and enjoy the movie, and they watch other films like some of Anurag Kashyap's films, which are always well seen and well received internationally, the more they see these kind of global films, the more a platform like Waves is interesting to regular people in America and in Europe. पुराने सिर्फ लोग नहीं, मतलब आज मैंने खुद अपने फैमिली माँ बाप के साथ बैठ के पूरा का पूरा शो, मैंने, मेरी बात की जनरेशन, पहले जनरेशन, सब ने एक साथ देखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे जो एक बहुत नॉस्टैल्जिक मोमेंट होता है जब ये सारे शोज़ वापस एक बार फिर से आ जाते हैं जो कहीं पे भी देखे नहीं जा सकते। सो आई एम श्योर क्योंकि ये दूरदर्शन के IP और उनका कंटेंट है तो ये सारा वेव्स में अवेलेबल रहेगा, तो वो एक अच्छी बात है। उसके साथ साथ अभी मैम जो बदलते दौर के हिसाब से सारी सोच है सर लोगों की, क्योंकि जिस तरह से मैं उनसे बात कर रहा हूँ, जिस तरह का हमने, क्योंकि हम खुद एक शो प्रोड्यूस कर रहे हैं फौजी अभी इसके लिए जो ऑलरेडी 18th को आ चुका है, तो उसको देखते हुए मैम सारा नया अंदाज, नाम पुराना, सब चीज़ें का जो मिक्स है, मुझे ऐसा लगता है इट इज़ गोइंग टू वर्क वंडर्स मैम फॉर श्योर। अब एक्चुअली हिंदुस्तान में, भारत में OTT प्लेटफॉर्म आ गया है और वो ये है कि मैं अपनी मम्मी, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी बहन के साथ मैं एक OTT प्लेटफॉर्म अब देख पाऊँगा। और वो उससे बेहतर क्या होगा कि हम दूरदर्शन पहले फैमिली के साथ देखते थे, अब दूरदर्शन का जो नेशनल वेव्स आने वाला है ना थ्रू दिस OTT प्लेटफॉर्म, आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। ये सरकार को कई साल पहले कर देना चाहिए था, ताकि जो पहले OTT प्लेटफॉर्म्स आए हैं और अपने IPO खोल के, क्योंकि उनको पैसा कमाना था, यहाँ तो किसी की सोच ही नहीं है पैसा कमाने की, यहाँ पे ये है कि लोगों की सोच बदली जाए। तो उस तरह का वेव्स आएगा और आप देख लीजिएगा कुछ सालों में ही वेव्स विल बी नंबर 1 एंड इट विल, हर देश, हर घर, हर लोगों के पास वेव्स की सोच पहुँचेगी और लोगों की सोच बदलेगी और कंटेंट, फिल्म मेकर्स की सोच बदलेगी, लिखने की सोच बदलेगी, अभिनय की सोच बदलेगी। वेव्स ने एक बड़े एग्रीगेटर OTT के रूप में प्रवेश किया है, जिसमें समावेशी भारत की कहानियां हैं जो भारतीय संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ जोड़ती हैं। 12 से ज्यादा भाषाओं में ये सूचना और मनोरंजन की विभिन्न शैलियां प्रस्तुत कर रहा है। दुनिया के शीर्ष निर्माता निर्देशकों की लेटेस्ट फिल्म और वेब सीरीज आप देख सकते हैं आपके अपने OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर, जो उस सुनहरी दौर की यादें तो ताज़ा करता ही है, आज का लेटेस्ट कंटेंट भी पेश कर रहा है। साथ ही कुछ प्रीमियम कंटेंट को छोड़कर बाकी इसका डाउनलोड और बाकी सारा कंटेंट पूरी तरह से निःशुल्क है। तो अगर आप अपने पूरे परिवार के साथ देखना चाहते हैं भरपूर मनोरंजन, तो तुरंत डाउनलोड कीजिए OTT प्लेटफॉर्म वेव्स। कैमरा पर्सन आलोक के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज़, पणजी, गोवा। यकीनन अविस्मरणीय, अद्भुत, ऐतिहासिक 75 देशों की फिल्मों का प्रदर्शन, दुनिया के शीर्ष कलाकारों का आगमन, दुनिया भर से जुटे लाखों सिने प्रेमी, हम सब ने महसूस की सिनेमा की असली ताकत को। इफ़ी 2024 का सफ़र यहीं होता है ख़त्म, लेकिन सिनेमा का ये जश्न यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।